Hi everybody, Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. I'm just waiting for a few people to join us so that we can start off with the discussion and I can formally introduce myself as well and let everybody know why I'm here and what is the purpose of today's live session as well, alright? So thodi der mein I shall be, giving you all the details, is waiting for a few people to join us. Okay then. Waiting. That's right. Hello, everybody. Assalamu alaikum. Good evening. All right. I'm seeing a lot of people who are now live with us as well. So I think let's go. All right. So once again, everybody, Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. My name is Sophia Anjum and I shall be a host for this live session. Thank you, Sunday Times, for being, fantastic and very generous. So आपको पता है कि बहुत सारे brands और companies जो हैं वो जब अपनी CSR कैंपेन करते हैं तो उसका जो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है. इवेंचुअली इट लीड्स टू समथिंग गुड इन द कम्युनिटी. स्पेशली रमज़ान के महीने में अगर आप कोई अच्छा काम करें जो बाबरकत महीना है, आई एम श्योर उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होता है. सो आज का जो सेशन है इट वुड बी entirely about Sixth Sense Group. Now, the thing is that I recently hosted something very interesting with them. It was about 6 mothers, 6 inspirational stories powered by the Sixth Sense Group. और उनका एक थीम है, एक टैगलाइन है, तामीर करो मोहब्बत से, यानी कि build everything with love, यानी कि मोहब्बत से. So we should be in conversation with, the brains behind Sixth Sense Group. The COO and CEO shall be joining us, and Sahir Ali Bhagat, that I'm really excited about as well. So he basically sang the anthem. He came out with the melody and the composition, and I'm really, really excited about it as well. But let's check. I think first and foremost, we should be in conversation group. That's right. Okay, everybody, I think we are almost live with them. I've just sent them a request as well. Assalamu alaikum. Good evening. Hello. Assalamu alaikum. Good evening. Wa alaikum assalam. The beautiful couple is here. कैसे हैं आप दोनों? मैं ठीक है. सोफिया आप कैसी है? माशाल्लाह, हमेशा एक्टिव, हमेशा फुल ऑफ लाइफ आप रहती हैं. माशाल्लाह. Thank you so much. आप हमारे लिए, I'm going to take about, अभी तो मैंने इनकी formal introduction करनी है for everybody who's watching us in Pakistan and around the world. Ladies and gentlemen, अगर आप real estate की बात करें तो पाकिस्तान में आपको अगर खवातीन ढूंढे भी तो बहुत कम मिलती हैं. तो ये एक क्वेश्चन मार्क है जो हमेशा से मेरे दिमाग में रहता है कि why are there not many women in the real estate industry in Pakistan? So when you talk about Nazia ji's name instantly pops up in your mind when you talk about real estate. So ये बड़ी inspirational figure हैं जी और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त campaigns भी निकाली हैं. So Nazia ji, we welcome you to our live session. थैंक यू. एक्चुअली सोफिया आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो हमारी फील्ड है रियल एस्टेट की, इसमें खवातीन बहुत कम है. और उसकी भी क्यों है कि क्योंकि कभी किसी ने इसको रियल एस्टेट को हमेशा टारगेट ये किया कि ये मेल की फील्ड है, फीमेल की फील्ड नहीं है. लेकिन आपको पता है जैसे ज्यादा आई, अब लोग बड़ा ट्रेंड सेट चेंज हो गया है और लोग इस फील्ड को खवातीन भी ज्वाइन कर रही हैं. और वैसे भी सोफिया मैं समझती हूँ कि जब आप अपनी बच्चियों को प्रॉपर्टी बाय करके देते हो ना तो एटलीस्ट आप उनको बताओ कि इस प्रॉपर्टी ने करना क्या है. हम लोग उससे लॉक में बंद होता है और हम समझते हैं हमें पता नहीं और हम दुनिया का दूसरों का मुंह देख रहे होते हैं. कम से कम आप चाहे मेरी जॉब के लिए नहीं, अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए अवेयर जरूर रखें. तो मैं समझती हूँ कि सोफिया हम बड़ा मैं उसी टाइप का प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ कि जितनी भी हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं और आने जितने भी बच्चे फ्यूचरली सोच रहे होते हैं वो यहाँ से कुछ ना कुछ लर्न करें, कुछ ना कुछ सीखें. तो ये चीज बड़ी अच्छी है. और आसपास देखना कि इंशाल्लाह सॉरी जी मेरा दरअसल फोन नहीं कोई मसला नहीं है. जरा आपको पता है फ्रेमिंग भी तो सही होनी चाहिए ना. वसीम साहब बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को, बाद में खबर लीजिएगा इनकी सेशन के बाद. हमें जरा स्लिम भी नजर आना चाहिए. हमें ये भी जरा खबर कह रही हूँ, बड़ी फ्रेमिंग बहुत जरूरी होती है जी. अच्छा, वसीम साहब जो हैं वो ऑफ कोर्स ही इज द पावर हाउस बिहाइंड सिक्स सेंस ग्रुप एज वेल. उनसे भी हम बातचीत करेंगे. नाजिया जी, एक सवाल जो बहुत जरूरी है कि तामीर करो मोहब्बत से, इसकी मोटिवेशन क्या थी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ.
बेसिकली सोफिया, हम लोग बड़े अरसे से ऑलरेडी अपने रियल एस्टेट की फील्ड में हम बिल्डिंग तो तमीर कर रहे थे, हम बिल्डिंग बना रहे थे और उसमें हम अपार्टमेंट बना रहे थे और कुछ घर भी होते हैं। तो बेसिकली आजकल ट्रेंड ये है कि अपार्टमेंट जब आप बना रहे होते हो तो उसमें लोग अपने लिए अपनी फैमिली रह रही होती है और उनकी एक थोड़ी सी फीलिंग, क्या ज्यादा फीलिंग होती है, इमोशनल अटैचमेंट होती है हर एक जी बंदे की प्रॉपर्टी के साथ। तो हमने ये चीज देखी कि हम सिर्फ प्रॉपर्टी सेल नहीं कर रहे होते, हम साथ साथ रिश्ते भी कायम करने की बात करें। जब आपका बिल्कुल। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है, जब आपके रिश्ते बनते हैं और इमोशनल अटैचमेंट होती है, तो आप बिलीव करें कि उस चीज का ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा होता है। और कभी भी आप देखें, जब हम स्पेशली घर बाय करते हैं तो उस घर के साथ आपने पूरे साल की मेहनत की होती है, पूरी जिंदगी की मेहनत की होती है, और उस सेविंग को जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हर कोई बंदा, पूरी फैमिली अटैच हो जाती है उसके साथ। और जब वो पूरी फैमिली जब उसके साथ अटैच होती है तो उनकी इमोशनल अटैचमेंट होती है। तो हमने इस चीज का बड़ा ख्याल रखा कि यार पूरी जिंदगी की मेहनत कुंजी, जब कस्टमर हमें दे रहा होता है तो वो हमारा कस्टमर नहीं हो, वो हमारा फैमिली मेंबर बन जाए, और उसके पैसे की हिफाजत हम ऐसी तरह करें जिस तरह हम अपने पैसे की हिफाजत कर रहे होते हैं। उसमें जी देखिए कि अगर एक फैमिली ने हमारे से अपार्टमेंट बाय किया या उन्होंने कोई कमर्शियल यूनिट बाय किया, तो उसको गारंटी रेंटल देना। फिर होता ये कि अगर मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली है तो मैं बेचूंगा किसको, ये एक बड़ी टेंशन वाली आपको पता बात होती है। तो हमारी ही कंपनी आपको बाय बैक भी कर रही होती है कि आपको मार्केट में जबरदस्त। अगर नहीं मिल रही तो आप हमारी ही कंपनी के पास आए, हम ही आपको बाय बैक गारंटी कर देंगे 10% के ऊपर। फिर उनको रेंटल एंड यूजर, मतलब कि हमने चीज बेच दी कि उसके ऊपर हमें प्रॉफिट क्या आ रहा है, तो जब उसके ऊपर एक जी प्रॉफिट आता है तो वो रेंटल की इनकम आ रही होती है। तो वो रेंटल की भी हम बड़ी केयरफुली हम हिफाजत करते हैं कि उनके घरों तक रेंटल पहुंचाना, इन जी चीजों को हम बड़ा ख्याल रखते हैं। और इस चीज को जब रमजान का महीना आया, रहमतों का महीना था, और आपको पता है पिछले साल कोविड इतना ज्यादा, और अभी भी कोरोना की सूरत हाल चल रही है, और आप देखिए बिल्कुल। बड़े बड़े नुकसानात हुए लोगों को। सिर्फ हम फिर ये नहीं सोचते कि बींदा पाकिस्तानी या हम एज अपनी कंपनी के बिहार पे सिर्फ कस्टमर का सोचें। जब एक बिल्डिंग बनती है तो उस बिल्डिंग में आपकी लेबर काम करती है, आपकी जी जब लेबर काम करती है तो उनके यार बहुत मसले मसाइल होते हैं, उनकी काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। और फिर जी हमने सोचा है कि यार इस टाइम हम सीएसआर का एक अपना स्टार्ट करें प्रोजेक्ट। और वो जी रमजान का महीना, इससे अच्छा महीना हमें कोई समझ नहीं आया कि ये बेशक वैसी बेशक। बरकतों वाला है और रहमतें इकट्ठी करने वाला महीना है। और हमने ये सीएसआर शुरू किया जिसमें हम बिलीव करें कि ये चीजों का ख्याल करते हैं कि जो आपके वो लोग, वो फैमिली, दरअसल हमने पूरे पाकिस्तान को सोचा, ना कि हमने जी सिलेक्टेड लोगों को सोचा कि यहाँ पे हम उन सबका ख्याल करें कि अल्लाह ने अगर हमें अता किया है और अल्लाह ने हाँ जी हमें दिल भी दिया हुआ बड़ा कि हम शेयरिंग करें, तो शेयरिंग करने में बरकत होती है। बिल्कुल बिल्कुल बेशक नाजी जी, इसीलिए तो मैं शुरू में बता रही थी कि आप इतनी इंस्पिरेशनल फिगर हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है एहसास रखना, एक दूसरे का एहसास होना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा वसीम साहब जो है ना, आप बड़े जबरदस्त डायरेक्टर का किरदार अपना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कैमरा अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। सोचे इस बारे में कि आप डायरेक्शन में भी आ सकते हैं। वसीम साहब ठीक ठाक हैं? कैसा रहा आपका दिन? बीवी की खिदमत में अजमत है, आपको पता है ना। क्या और बात है, हर क्या शरीफ बात आदमी है। की ख्वाहिश होती है कि उसकी घर में इज्जत रहे, तो इज्जत रहने के लिए बीवी की मुसलसल खिदमत करते रहना जरूरी है। बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा वसीम साहब मुझे ये बताएं कि अगर आप इस टैगलाइन के बारे में बात करें, तामीर करो मोहब्बत से, तो ये किस तरह सिमिलर है आपके वे ऑफ थिंकिंग एंड द वे ऑफ डूइंग बिजनेस से? क्योंकि माशाल्लाह आप एक बिजनेसमैन भी हैं, आपका एक नजरिया है सोचने का, तो आप इसको किस तरह रिलेट करेंगे? एक्चुअली काफी कुछ तो आपको नाजिया ने बता दिया इससे रिलेटेड, जो हम सोचते हैं, जो हम करना चाहते हैं। अगर मैं अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू उसमें एड अप करूं तो वो हम लोग अपने अगर सिर्फ लाहौर की हद तक ही देखें तो बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो लोगों ने बेच दी और वो खाली पड़ी हुई है, या लोगों ने मिस कमिटमेंट करके डिलीवर कर दी और फिर बाद में जिन्होंने खरीदी हुई है वो परेशान है। तो हम बेसिकली जो बायर है उसको उसको भी अवेयरनेस देना चाहते हैं कि जी आप जब चीज के बीच में आ रहे हैं, आपको जब एक चीज पता चल रही है, आप एक चीज खरीदने जा रहे हैं, तो आप भी ये जाके देखें कि आया बिल्डर का भी कंसर्न है उसके साथ के नहीं। बिल्डर का, बिल्कुल अब हम ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि जो बिल्डर है वो भी जिसको कोई चीज बेच रहा है वो ये सोच के बेचे कि उसने अपनी जिंदगी की सारी कुल कायनात लगा के वो एक चीज परचेज कर रहा है,
उससे उसको इनकम मिल सके, उससे उसकी खुशियां जुड़ सके। इसलिए ये जी, तामीर करो मोहब्बत से की कैंपेन हमने स्टार्ट की है। और ये सिर्फ जबरदस्त बिल्डिंग जबरदस्त। की हद तक नहीं है कनेक्टेड, ये आप अपनी जिंदगियों के साथ इसे कनेक्ट करें, अपने रिश्तों को तामीर करें मोहब्बत से, अपनी दोस्तियों को तामीर करें मोहब्बत से, हर चीज को मोहब्बत के साथ कनेक्ट करें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएँ कि अगर आप रियल एस्टेट के बारे में बात करें, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तो हर कोई देखना चाह रहा है ना कि वो रोशन हो और वो बिल्कुल जगमगाता हो और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की की राह पर जाए। तो हाउ सेफ इज़ इट, लेट मी पुट इट दैट वे, इन्वेस्टिंग इन से 6 सेंट ग्रुप आल्सो व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट हियर इन पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान की जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, अगर मैं गलत नहीं हूं और अगर मेरे फिगर्स ठीक हैं, तो हम लोग हमेशा से, हमारा जो मुल्क था ना, हमारा हमेशा से टेक्सटाइल ड्रिवन मुल्क रहा है। हमारा जी, जो मेजर एक्सपोर्ट थी वो टेक्सटाइल से रिलेटेड थी। और अगर आप जी, करंट सिनेरियो देखें तो हमारी जितने भी बड़े टेक्सटाइल यूनिट्स हैं वो फुल कैपेसिटी पे इस वक्त रन हो रहे हैं, जी। बिकॉज पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई है और सिर्फ हम लोग हैं जो काम किए जा रहे हैं। अब जब हुँ, एक इंडस्ट्री अपने फुल स्विंग पे चल रही है, जो पिछले 70 साल से इस मुल्क को चला रही थी, तो वो जो पैसा सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से हो रहा है, जनरेट हो रहा है, वो घूम फिर के इसी मार्केट में आना है। रियल हुँ, एस्टेट। जब फैक्ट्रियों ने काम करना है तो नेचुरली लोगों ने उसमें से पैसा कमाना है, वो उनके बिल्कुल। एम्प्लॉयज हो, वो उनके ट्रेडर्स हो, वो उनके फैसिलिटेटर्स हो। और जब भी पैसा रोटेट होना शुरू होता है तो हर एक की फर्स्ट प्रायोरिटी दो ही चीजें होती हैं, या वो अच्छी गाड़ी लेना चाहता है या वो अपने लिए हुँ, इन्वेस्ट करना चाहता है। वो इन्वेस्टमेंट चाहे जी, घर में हो, वो इन्वेस्टमेंट चाहे कमर्शियल में हो, वो इन्वेस्टमेंट किसी तरह भी हो, वो रियल एस्टेट में आएगा या गाड़ियों में जाएगा। तो गाड़ियों का आप जी, तूफान देख ही सकती हैं, माशाल्लाह हर एक गाड़ी पर ही ऑन चल रहा है इस वक्त। तो दूसरे हम हुँ, रियल एस्टेट सेक्टर है। तो इस वक्त तो ये जी, गारंटीड है ना कि कोरोना हमारे लिए तो आप समझ लें बाइस रहमत बना हुआ है। ठीक है, उसके अपने प्रॉब्लम्स तो चल रहे हैं, बीमारियां चल रही हैं, लोग लॉकडाउन में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, बड़ी रहमतें हैं कि हमारा एक जो पूरा मुल्क ड्राइव कर रहा है जो सेक्टर, वो इस वक्त फुल स्विंग में चल रहा है। उसी की वजह से रियल एस्टेट भी इस वक्त एस्टेब्लिश होता जा रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट तो बड़ी प्रॉमिसिंग है। अच्छा, इसमें ठीक, मैं ठीक। एक और भी जी, बात कहना आपसे शेयर करना चाहूंगी। जिस तरह आप देखिए कि जी जब नाज़िया। बिल्कुल कोरोना बहुत ज्यादा फैला, तो सोफिया आप देखें कि जितने भी ओवरसीज पे बाहर रह रहे थे, तो उन्होंने कहा आप वापस अपने पाकिस्तान जाएं, अपने घरों में जाएं, अपने अपने कंट्री जाएं। तो जब बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। कई ऐसे लोग जब वापस पाकिस्तान आए, तो उन्होंने कहा कि यार जब हम अपनी उस आउट जो सॉरी ओवरसीज है, तो वो समझते थे कि वो शायद हमारा घर है, लेकिन हुँ, वापस तो पाकिस्तान आना था, आपने अपने घर हाँ, आना था। तो उन्होंने हुँ, देखा हमने इतना बिजनेस वहां सेट किया, उनकी गवर्नमेंट ने रूल्स बना लिया कि जितना भी पाकिस्तान से या XYZ कंट्री से आए हैं वापस जाएं। जब हुँ, हमारे कई कस्टमर वापस आए तो वो कहने लगे कि मैडम हम तो डर गए कि हमारे तो इन्वेस्टमेंट थी और उन्होंने फौरन हमें पाकिस्तान, और पाकिस्तान में हमने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। तो ठीक, वो ठीक। कहने लगे कि अब हमने ये सोचा कि 50% तो हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, ताकि हुँ, हमने वापस तो अपने ही कंट्री आना है। ये हाल बिलीव हुँ, करें सोफिया, मैं शेयर करूंगी, वाहिद ये मैं हूँ उन बेटा। बच्चों की तरह है जिस तरह हम यंग हो हाँ जी। जाते हैं ना, तो हम कहते हैं मम्मा क्या आप हमारे से पूछती रहती हैं हर टाइम, माँ पीछे पड़ी रहती है। और जब जी। एंड में हम कहीं से दुख हो जाता है ना, या हमारा दिल दुखता है और कहीं पे हम अकेले हो जाते हैं और पलट के हम माँ की गोद में चले जाते हैं हाँ, और बिल्कुल, हम ओके। कहते बिल्कुल, हैं कि अम्मा आपके अलावा वफादार हमारा कोई नहीं रहा। तो इसी तरह बिल्कुल। हमारी लैंड है, इसी तरह हमारा पाकिस्तान है। और बिलीव हुँ, करें, बीइंग द पाकिस्तानी और बाय द पाकिस्तानी ये फार्मूला रखें तो पाकिस्तान की तरक्की मस्ट है यार। और गवर्नमेंट को मैं अप्रिशिएट करूंगी, गवर्नमेंट ने भी हाई राइज बिल्डिंग को कहा और कहा कि इस टाइम आप लेके आए पैसे, इन्वेस्ट करें, हम नहीं पूछेंगे। और दुनिया ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया। तो इस टाइम बिल्कुल। वक्त अगर हमारे पे बुरा है, बिलीव करे, बड़ी बड़ी सैड टाइम है ये वाला कोरोना का। हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, हम अपने जी, अजीजों को नहीं मिल सकते। और बिलीव करें हमारे बुजुर्ग या जो कोरोना में बीमार हैं, ये बहुत एक अफसोसनाक वाली स्टोरी होती है। जी। लेकिन इसके साथ साथ सरवाइव भी हम कर रहे हैं। ये इसलिए सरवाइव कर रहे हैं कि वाहिदली मैं समझती हूँ हमारे पाकिस्तान में कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत है, हमारी हुँ। नमाजें हैं, हमारी दुआएं हैं, उसके सबब मैं समझती हूँ हम सब सरवाइव कर रहे होते हैं। हाँ, नहीं बेशक अल्लाह की रहमत है, मेरे ख्याल से वाक़ई ये तो ब्लेसिंग है, नो डाउट अबाउट दैट। थैंक यू सो मच नाज़िया जी, आपने इतने बेहतरीन थैंक यू। तरीके से रैप अप किया है सब कुछ। अच्छा, आखिरी सवाल कि आपको पता है कि ये जो आपका एक तराना था, मैं तो इसको तराना बोलूँगी, ठीक है? तामीर करो मोहब्बत से,
It was beautifully sung by Sahir Ali Bagga. So उसके बारे में जरा हमें बताएं ना. How proud of that anthem are you? आप बिलीव करें, एक तो मुझे जब मैंने ये सारा एंथम डिसाइड किया, और हमने साहिर अली बागा को भी क्यों लिया, क्योंकि इनकी एक तो बड़ी एक जब वो गाना गाते हैं तो दिल से, और बड़ी एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, और एक बड़ा सीन होता है कि मैं बड़ा अटैच हूँ इस सॉन्ग के साथ. तो इनको सिलेक्ट करने का मकसद ये था कि इनकी हमेशा आवाज़ भी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, और ये गाते भी दिल से हैं. तो अब जब हमने ये डिसाइड किया तो हमने कहा यार हम लोग बिल्डिंग तो देखो तमीर कर रहे हैं, तो तमीर करो मोहब्बत से, हम अपने रिलेशन को भी तमीर करें. इसमें आपने देखा होगा कि हमने मुख्तलिफ ये देखा कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं, बेसिकली हमने टारगेट सफ़ेद पोश लोगों को किया. सोफिया, ज़्यादातर लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम बाहर खाना बांट दें, बाहर राशन बांट दें. आपने उन लोगों को देखा जिनके एक एक कनाल के भी घर हैं, 5-5 मरले के घर है, 10 मरले के घर है, उनकी सैलरियां बंद हो गई हैं, वो किसी से मांग नहीं सकते. जैसे हमारे शॉप में लड़के काम करते हैं तो वो जाके नहीं मांगेंगे. हमने उनके लिए एक वॉचर बनाया, उन तक वो वॉचर पहुंचाया, और उन्हें कहा आप आए और आके अफ्तारी यहाँ से कलेक्ट करें और अपने घरों में जाएं, जिनको ये वॉचर चाहिए था. फिर ऐसे ही हमने देखा कि जिस तरह के लोग रिक्शा चला सकते हैं, आपको पता है रमजान में बिजनेस स्टार्ट करवा देना, हमने लोगों को रिक्शे भी तकसीम किए. इसी तरीके से हमने राशन, उनको आपने मेरी ऐड में भी देखा होगा कि बच्ची देखती है कि मैं बाबा के लिए खाना बनाऊंगी और वो खाली होता है, तो अचानक एक बॉक्स आता है, हमने अपना फेस नहीं दिखाया, वो दरवाजा खोलती तो उसको बॉक्स मिलता है. तो हमने राशन भी सोफिया ऐसे ही बांटे हैं, हमने लाइन पे लग के नहीं बांटे, हमने लोगों के घरों तक. यही तो बात है ना. This is the need of the hour. We all need to come together and make an individual effort. Companies, brands, जितने भी individuals हैं सारे इकट्ठे होंगे तो हम कुछ कर सकेंगे. तो नाज़िर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Is there anything else you'd like to say before we say goodbye? Thank you Sophia. Goodbye. All right. Thank you very much Sophia. इंशाल्लाह हम जैसे लोगों को आप प्रमोट करते रहेंगे तो शायद और बहुत सारे लोग जो CSR कर सकते हैं लेकिन वो हिम्मत नहीं कर रहे, वो भी करना शुरू हो जाएंगे. बिकॉज ये अपना मुल्क है. अपने मुल्क पे अगर सख्त वक्त आएगा तो अपनों ने ही बचाना है. तो अपनों की हेल्प करें, अपनों के लिए खड़ा हो, अपनों के लिए स्पेंड करें. बिल्कुल. कहते जी ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट रिलीजन. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. आई थिंक सिक्स्थ सेंस ग्रुप हमेशा से सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करता आ रहा है. फिर वो एम्पावरमेंट में भी बिलीव करता है, वो इनेबलर्स भी हैं. तो आपने बहुत अच्छा बैलेंस रखा है. गॉड ब्लेस द बोथ ऑफ यू. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज. Thank you. Allah Hafiz. All right, everybody. That was a very interesting conversation we were having with the team behind Sixth Sense Group. And अब जो है साहिर अली बगा साहब से भी हम बातचीत करेंगे. I think he's trying to close down the video. You have to cross it. There you go. All right. So let's see. We have lots and lots of people who are participating in as well. Thank you very much for your comments. My name is Sophia Anjum. We're here at Sunday Times Insta Live. और हो क्या रहा है जी, एक टैगलाइन है. It's a campaign. It's called तामीर करो मोहब्बत से. और आइडिया ये है to give back to the society. जो कुछ भी हम कर रहे हैं हमें मोहब्बत से करना चाहिए, प्यार से करना चाहिए और दिल से करना चाहिए. तो ये जी थॉट प्रोसेस है. थोड़ी देर में साहिर अली बगा से भी हम बातचीत करेंगे. I think it's time for us to say hello to him. He is a singer. He is a songwriter. He is a producer. He is a composer. He's very talented and the pride of Pakistan, ladies and gentlemen. And I see Sahir Ali Bagga here right now. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? आवाज आ रही है? I'm good. आप कैसे हैं? कहती है ठीक ठाक. जी बिल्कुल आ रही है मुझे. हमेशा फेस्टिवल्स पे होती है या कोई ना कोई कॉन्सर्ट्स पे, म्यूजिकल इवेंट्स पे. बड़ा अच्छा लगा आज आपको देखकर. रमजान कैसा गुजर रहा है? थैंक यू. सेम हियर. बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू वेरी मच. जबरदस्त. अच्छा बगा साहब, मुझे ये बताएं कि बड़ा इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है जी हमारा तामीर करो मोहब्बत से. तो इसके साथ जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? जी आई फील वेरी लकी. सबसे पहले तो ये जो एक मोहब्बत का ये प्रैक्टिकल एक्ट जो है सिक्स सेंस का, ये मेरे दिल के बहुत करीब है. क्योंकि ये इसमें सिर्फ इसका जो एक मिशन जो है वो यही है कि मोहब्बत से हो सब कुछ दुनिया में, तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं रहती कभी भी. तो जब हमारी जब पूरी टीम की ब्रीफ ये थी तो मुझे नहीं लग रहा था कि हम कोई ऐड बना रहे हैं. हमें लग रहा है कि हम मोहब्बत ही क्रिएट कर रहे हैं कोई,
तो जैसे वर्ड लिखे हुए थे उसके जो जो डिसाइड हुआ, तो उसको लेके फिर मेरे दिल के बहुत करीब रहा। मैंने कंपोजिशन भी उसका बनाया खुद ही, फिर मैंने उसको गाया। जब मैंने गाया तो मुझे खुद भी ऐसा फील हुआ कि वाकई इसमें एक मोहब्बत जो है वो एक अल्लाह की तरफ से भी आ गई है। तो दिस इज़ वेरी, जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि ये आई एम पार्ट ऑफ इट। दैट्स लवली। अच्छा बाकी साहब, वैसे तो आप माशाल्लाह इतनी ज्यादा कंपनी से बातचीत भी करते हैं, मुलाकात भी करते हैं, काम भी करते हैं, तो आपके ख्याल से पाकिस्तान में कंपनीज को, ब्रांड्स को आगे आना चाहिए ना, इस किस्म की एक्टिविटीज करनी चाहिए सीएसआर से रिलेटेड? जी जी, बहुत ज़रूरी है ये। मैं ये समझता हूँ कि हम सारा कुछ देखते हैं, कुछ होता है पाकिस्तान में, बहुत बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन जहाँ मैं समझता हूँ कि इसको जो एक आप पर्सनली फील, जो अपने दिल की जो बात है वो अपने प्रोडक्ट में कैसे कर सकते हैं, या ये मुझे नई चीज़ जो प्रोडक्ट में नजर आई है। तो बाकी जो चीज़ लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सभी भी, ये भी एक नया, मुझे लगा कि एक नई चीज़ है। तो मुझे इसमें यह है कि थोड़ा फॉलो, मुझे लगता है करेंगे आगे भी लोग इस प्रोजेक्ट की जो मोहब्बत और जो चीज़ें इसमें थी, वो मेरा ख्याल आगे लेके चलेंगे इसको। जबरदस्त जी, जबरदस्त। अच्छा आपके हाथ में गिटार है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि बगर साहब से बात कर रहे हैं तो वो हमें कुछ गा के ना बताएं? तो हमारी जरा पुरजोश फरमाइश के ऊपर जरा, मेरे ख्याल से सारे लोग चाहेंगे कि आप ये जरा गाएं। प्लीज, थैंक यू, वी रियली वांट टू लिसन टू दिस। जरूर, श्योर जी, मैं सुनाता हूँ। या लेट्स यही डू इट। जो है हमारा। जी। देखो तुम जहाँ को है नजरें झुकाए, इन आँखों में ढूंढो ये क्या कुछ छुपाए, इन कपड़ों पे सालन के दाग क्यों नहीं लगते, ऐ बरसों के प्यासे से बिलखते, खुदा सुन रहा है सभी की सदाएं, आओ हाथ आए, कर दिल से दुआएं, है शुक्र खुदाया खुदाया जो तूने नवाजा नवाजा, है शुक्र खुदाया खुदाया जो तूने नवाजा नवाजा, खुदा सुन रहा है, खुदा ने दिया है जो तुमको बढ़ के, तामीर मोहब्बत से करो आगे बढ़ के, मोहब्बत से सबको ये अपना बनाए, है शुक्र खुदाया खुदाया जो तूने नवाजा नवाजा। क्या बात है, जबरदस्त। बगर साहब आपको पता है, अगर हम अभी लाइव होते तो ऑडियंस को मैं क्या कहती, जरा शोर मचाएं, जरा तालियां बजाएं, मगर ये है कि रेस्ट एश्योर्ड आपने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक सो यू मच। सो। सारी टीम वर्क किया जी मेरे के। जी जी बगर साहब आप बोल रहे हैं। मैंने कहा जी, ये सारा जो काम है, जो कामयाबी है, ये पूरी टीम की जो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली इसमें, ये मैं पूरी समझता हूँ कि ये एक टीम वर्क है और सब ने बहुत दिल से, बहुत जान लगा के काम किया। और जो जब भी कोई हम गाना कंपोज करें या कभी गाएं कोई सी चीज़, तो हम जो हमसे जो मेरे से मतलब मुझे ब्रीफ कर रहा होता है, मैं उसकी एक्साइटमेंट देख रहा होता हूँ कि वो कितना एक्साइटेड है काम को लेके। तो माशाल्लाह जी पूरी टीम बहुत बहुत दिल से काम किया है। ये सारी एनर्जी जो मुझे मिली इसको बनाने में, ये सारी टीम से मुझे मिली है, तो फिर मैं भी टीम का एक पार्ट बनाऊं, तो सब मिलके एक गुलदस्ता जो बना है, और उस पर अल्लाह की मेहरबानी हुई कि हमें इसमें कामयाबी मिली अल्हम्दुलिल्लाह।
I love that. Thank you so much, ladies and gentlemen, Khawatino Hazrat, Sahir Ali Baga, singer है, songwriter है, producer है, composer है. हर फन मौला कहती हूँ मैं तो उनको. He has so many feathers in his cap. Enjoy your evening. आपका बहुत शुक्रिया. Thank you, sir. Thank you, thank you, thank you. Khuda Hafiz. All right, everybody. Thank you so much for watching this live session here at Sunday Times. My name is Sophia Anjum, and today we were talking about, this live session. I think Baga sahab, aap zara apni close down kar liya na video, kar liye. All right. So we were having this very interesting session just a while ago. I'll give you a little bit of a roundup also. Tameer karo. Mohabbat Se. Now, that is the name of the campaign by Sixth Sense Group. Now, tomorrow, something very interesting is coming out as well. 6 mothers, 6 inspirational stories powered by the Sixth Sense Group. So thank you so very much for watching. I think I'd just like to say something before I sign out, that who are we as human beings if we ignore the sufferings of others? इसीलिए एक दूसरे का एहसास करना बहुत ज़रूरी है. Empathy is the name of the game. So thank you very much once again for watching us, and we'll catch you guys inshallah very soon. Have a safe Ramzan ahead and a wonderful weekend, and inshallah we will see you soon. Goodbye. Khuda Hafiz.